जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ कर रहा हूँ, जो कि जो लोग भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं और सिविल इंजीनियरिंग के हैं, ऑब्वियसली जो लोग भी फ्लूइड मैकेनिक्स एक कोर्स है उनके प्रिपरेशन में या उनके वॉट एवर स्टडी दे आर डूइंग, सो दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर देम. Okay, so I am dealing properties of fluid. Okay, so it's actually the first chapter of fluid mechanics. I have already completed the theory part from the last 3 lectures. This is the lecture number 4. Okay, so in this lecture we are going to solve some very very important problems that already uh, came in some different exams. Okay, obviously I am targeting the exams like GATE, IAS and IAS. Okay, and obviously those who are in universities, for them also this will be very very helpful. Okay, so this about myself. Okay, so we'll see lecture number 4 of fluid mechanics. Okay, so this is question number 6. Okay, so I think last five questions I've already covered in the previous previous 3 lectures. Okay, so we'll see some more problem as I have told you earlier. So देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलता है. हाँ देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वॉट एवर क्वेश्चन आई हैव टेकन इन दिस लेक्चर सीरीज, दे आर नॉट फ्रॉम एनी ऑफ द बुक. ओके, किसी आपको बुक में नहीं मिलेंगे. These all the question is from different exams like GATE, IAS and IAS. Okay, either MCQs or either mains question. Okay, even the MCQs question also in the form of like this kind of explanation. Actually, like this question is also MCQ question, but I have taken it as a means type of question. Okay, so I'm giving the complete solution. Okay, so these notes is made by me, okay, from different resources. So okay, so this is not from any of the single book. It is a collection of many resources. So if you're following this entire lecture series, so I will suggest you, so while watching this video, you make your own notes. Okay, you just copy what I have written. So uh, what will happen, like suppose during exam time, okay, if you just revise the notes, okay, you can revise within 4 to 5 hours. Okay, if you have notes, but if you are going to watch, it will take time. Okay, so till entire year you watch, but you make a note of this, and during exam time you can just revise, not 5 hours, but at least within 8 to 10 hours you can easily revise of this. I don't know how many lecture I will take to complete this entire lecture, but this is of almost of 100 hours. Okay, but maybe lectures will be more than 100. Okay, but this actually fluid mechanics, it will take around 100 hours to complete. Anyway, these kind of instruction I'm not going to give in the coming lectures, since it's like a starting lecture. So what happened if you are following these lectures, so how you have to go with these lectures, that I'm telling. Okay, anyway, we'll see this question. What this question is saying: the equation for state of a liquid is this. Okay, then find the bulk modulus of pressure. Then find the bulk modulus, okay, at a pressure of 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देखिए, इस क्वेश्चन में आपको प्रेशर दिया हुआ है जो कि फंक्शन है रो के, डेंसिटी के. ओके, इज नॉट अ फिक्स, इट्स अ वेरिएबल. सो दे आर आस्किंग बल्क मॉडुलस. ओके, इफ प्रेशर इज दिस 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो आपको देखने में बड़ा सिंपल सा लग रहा होगा, बट एक्चुअली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दिया है तो आप इजीली देख के सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि यार कैसे इसको सॉल्व करना है. देखिए मैं बताता हूँ. अगर आप पहले वाले लेक्चर्स मेरे फॉलो करेंगे तो आई हैव ऑलरेडी डेराइव दिस के इज इक्वल टू रो डी पी बाई डी रो. ठीक है, कैसे डेराइव करना वो आपको आप पिछले वीडियोस देखिए, वो आपको पता चल जाएगा. सो के इज इक्वल टू रो डी पी बाई डी रो. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बल्क मॉडुलस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी. ओके, नाउ प्रेशर इज गिवन. Okay, so what you do, you just
differentiate this braces, that is p is equal to 3500 root to the power 1 by 2 plus 2500, that is given here. You just differentiate this with respect to rho. Okay, so if you differentiate, you will get 3500 into half root to the power minus half. Okay, this expression you are going to get dp by d rho 3500 by 2 root to the power minus half. Now put this value here. Okay, ये वैल्यू को आप यहाँ पे रखो और सिंप्लीफाई करो. तो आप जब इसमें रखोगे, ओके, सो k इज इक्वल टू रो इंटू 3500 इंटू रो टू पावर माइनस हाफ बाई 2. नाउ यू सिंप्लीफाई दिस. ओके, सो यू गेट k इज इक्वल टू 1 बाई 2 और 3500 इंटू रो टू पावर हाफ. अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन, आप कंफ्यूज हो जाओगे. अगर एग्जाम में आप पहली बार इस क्वेश्चन को कर रहे हो तब थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे. ये इसी चीज़ के लिए मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. अब देखिए आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, आपको यही चीज़ पता है, आपको कुछ और नहीं पता है. यू नो ओनली दिस k इज इक्वल टू रो डी पी बाई डी रो. इसके अलावा आपको कुछ और नहीं पता है. ठीक है, अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करके रो की वैल्यू रख रहे हैं तो आपको रो के टर्म में मिल जा रहा है. ओके, हाफ इंटू 3500 रो टू द पावर 1 बाई 2. और रो तो दिया नहीं है, रो इज नॉट गिवन. ठीक है, अब देखिए इसमें P जब हमारा 10 टू द पावर 5 पास्कल है तब पूछ रहा है बल्क मॉडुलस. तो आपको लग सकता है कि यार ये कहीं रो की वैल्यू तो नहीं ना है, रो तो दिया नहीं, हम कैसे सॉल्व करेंगे. बट ऐसा नहीं है, ये एब्सोल्युटली फाइन क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन है. अब इसको देखिए, k इज इक्वल टू 1 बाई 2 3500 रो टू द पावर हाफ. अब इसको देखिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए. यू जस्ट कंसीडर इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब इसको देखिए, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए. ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए. अब इसमें देखिए ये 3500 रो टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 2500. ठीक है, इज इक्वल टू पी. अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, ये वाला टर्म कॉमन है 3500 इंटू रो टू द पावर हाफ. यहाँ पे भी विच इज कॉमन 3500 रो टू द पावर हाफ. यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ना, 3500 इंटू रो टू द पावर हाफ. ये क्या होगा, p माइनस 2500. ओके, तो दैट इज p माइनस 2500. ओके, सो यहाँ से आपको 3500 रो टू द पावर हाफ की वैल्यू मिल जाएगी, p माइनस 2500. अब इसको आप उठा के इसमें रख दो. ठीक है, अब इस चीज़ को आप हमें जो भी बोलो, इसको आप यहाँ उठा के यहाँ पर रख दो. आपको मिल जाएगा k p के टर्म में, k इज इक्वल टू हाफ p माइनस 2500. अब इसकी वैल्यू आप उठा के इसमें रख दो. ओके, जो कि हमें ये ओके 10 टू द पावर 5. अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट 48750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, सो आई थिंक यू ऑलरेडी अंडरस्टूड लाइक व्हाट आई वांट टू से, दैट क्यों ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ी देर के लिए सोच सकते हो कि यार रो की वैल्यू नहीं पता है, कैसे सॉल्व करेंगे. बट ऐसा नहीं है, हमें k को p के टर्म में लिखना है. डिफ्रेंशिएट करिए, फिर रो को इस वाले इक्वेशन से रिप्लेस कर दीजिए p माइनस 2500. उसके बाद p की वैल्यू रखिए, विल गेट आंसर. ओके, सो द आंसर इज 48750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, ये किसी साल गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, गेट में IAS में आया हुआ क्वेश्चन है, MCQ में ये इसका ऑप्शन था. ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन. दिस वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन. Because why I'm saying this is very complicated question. I was also the faculty of the mechanical engineering department, so when I was making the quiz, okay, so I have asked many times this question. So the people has made the same mistake. Even few students have written so rho is not given, so we cannot solve this question. This kind of comment I got from this question. Okay, so that's what I'm saying. This type of confusion you can also face if this type of question you are getting. Okay, so I hope you understood what this question says and how we can solve this. Anyway, we'll see more. So very simple question. Question number 7. This video there is complete questions is there. There is no theory part.
you will learn a lot of like how to solve different questions. Sorry, I have some throat problem, so you have to manage with that. An increase in presence of 2 bar decreases the volume of a liquid by 0.01%. Then find the bulk modulus in Newton per मीटर क्यूब. ओके, तो देखिए बल्क मॉडुलस के दो एक्सप्रेशन है. एक तो जो भी हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था इन टर्म्स ऑफ रो एंड पी, और एक ये जनरल एक्सप्रेशन है. दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन. एक्चुअली में वो वाला एक्सप्रेशन यहीं से डराइव होता है. ओके, आप रो वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर लो, और मान लो रो और वी दोनों वेरिएबल है, तो उसको वी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, और फिर इसमें ला कर रखोगे तो वही वाली वैल्यू मिलेगी आपको. ओके, बट द जनरल एक्सप्रेशन इज के इज इक्वल टू डी पी बाई माइनस डी वी बाई वी. ओके, सो डी पी इज गिवन, प्रेशर डिफरेंस इज गिवन 2 बार. इसको पास्कल में कन्वर्ट कर लो, 2 इंटू 5. ओके, सो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल जो होता है 1 बार होता है. ओके, v इज गिवन 100. आई मीन ये आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिस इज लाइक dv बाई वी दिया हुआ है. ओके, परसेंट. सो dv इज 0.01, 100 इज v. अब इन दोनों वैल्यू को आप इसमें रख दो, विल गेट आंसर 2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं, आप इजीली इसको कर सकते हो. क्यों इसको कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा है. ओके, दिस क्वेश्चन नंबर 8. व्हेन द प्रेजेंस ऑन अ गिवन मास ऑफ लिक्विड is increased from 3 megapascal to 3.5 megapascal, the density of liquid increases from 500 kg per meter cube to 501 kg per meter cube. Find the bulk modulus in megapascal. Okay, so we have to use the same expression, that is k is equal to rho dp by d rho. Okay, and all the values is given, we have to put those value in the formula, we'll get the answer. Okay, so dp is 0.5 megapascal. कैसे देखिए, ये 3 megapascal 3.5 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, you'll get 0.5 megapascal. ओके, डी रो बाई रो. सो डी रो मीन्स अगेन देखिए इसमें इनिशियल कितना है 500, फाइनल कितना है 501. सो चेंज कितना हो जाएगा 1. ओके, सो 500 माइनस 501 minus 500, you will get 1. Initial is 500. So this is dp by d rho is 1 by 500. Now put these value here. Okay, here and this value here. So it will be 0.5 by 1 by 500. So if you simplify this, you will get 250. Okay, so the answer is whatever answer. Okay, ये actually MCQ है, मैंने options नहीं दिए यहाँ पे, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो. दिस ऑल्सो आई थिंक इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वेश्चन. आई रिमेंबर लाइक विच क्वेश्चन केम इन विच एग्जाम. कुछ में एक दो में ऐसा आगे पीछे हो सकता है कि नहीं ये वाला उसमें आया था, ये वाला उसमें आया था, बट मोस्ट ऑफ आई रिमेंबर इन विच एग्जाम दिस क्वेश्चन ऑलरेडी केम. ओके, विल सी मोर क्वेश्चन. ये कन्वेंशनल क्वेश्चन, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है. ओके, मेंस में आया हुआ है, और ये अगर आप आई थिंक मोदी एंड सेठ या फिर बंसल किसी एक में ये क्वेश्चन दिया हुआ भी है, क्योंकि ये ऑलरेडी आया है एग्जाम में, प्लस कन्वेंशनल क्वेश्चन है, मेंस क्वेश्चन है, और दिया भी है. आई थिंक मोदी एंड सेठ में दिया है, यू जस्ट चेक दैट. एनीवे, अगर आप नहीं भी चेक करते हो तो कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता चल जाएगा. लेट्स रीड दैट. ओके, through a very narrow gap of height edge, a thin plate of large area is pulled at velocity v. If the upper side of the plate is an oil of viscosity mu1 and the other side of oil of viscosity mu2, calculate the position of the plate so that, okay, so that first shear force on the two sides of the plate are equal. Second case, the shear force required to pull the plate is minimum. Okay, तो देखिए दो एक नैरो गैप है, ठीक है, ऑफ हाइट एज, उसके बीच में एक प्लेट लगा रखा गया है, ठीक है,
और एक साइड की फ्लूइड की विस्कोसिटी μ1 है, दूसरे साइड की विस्कोसिटी μ2 है, और उस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। तो और जिसकी वजह से वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमें बताना है कि उसका पोजीशन बताना है जब शियर फोर्स दोनों साइड का इक्वल है और मिनिमम है। दिस इज द कंडीशन, ओके। तो इस केस में हमें बताना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द प्लेट, okay. So we'll see that. I hope you understood the question. So if you don't understand, so please read again and again this, read at least twice so that you understand the question. Okay, so this is the situation, okay. So this is the gap, which height is h, okay. इसके बीच में एक प्लेट को रखा गया है जो कि फोर्स F से मूव कर रहा है, एक साइड के जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी μ1 है, दूसरे साइड का μ2 है, ठीक है। मान लो नीचे से इसका गैप y है, वही y ही हमसे पूछ रहा है कि किस पोजीशन में है जब फोर्स, शियर फोर्स, यहाँ पे जो शियर फोर्स लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो लग रहा है, ठीक है। अगर मान लो इधर की तरफ ये मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली बात शियर फोर्स अपोजिट साइड में लगेगा। तो ये दोनों जब इक्वल है और ये दोनों जब मिनिमम है तो इसका पोजीशन क्या होगा, वही ये चीज़ पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो मान लो ये जो प्लेट है ये वाई गैप पे है, ठीक है। इनिशियली मान लो वाई गैप पे है, तो ये वाई है तो कितना हो जाएगा h माइनस वाई, ओके, बिकॉज दिस गैप इज h, सो दिस इज h माइनस वाई, दिस इज y, ओके। सो अब देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप पिछले लेक्चर्स को देखिए, वहाँ पे मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बताया हुआ है। दैट इज व्हाट, टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाई dy। मैं बार बार उसको नहीं बताने चाहूँगा, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, यू प्लीज सी दैट। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी सेड शियर स्ट्रेस दैट टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाई dy, ओके। सो इन फर्स्ट केस लाइक सपोज दिस इज टाउ, दिस इज टाउ, दिस इज टाउ, so in first case both are equal, ऐसा बोल रहा है, okay, both are equal. So here you can say that tau 1 is equal to tau 2, shear stress that talking about, tau 1 is equal to tau 2, that is μ1, इस वाले फ्लूइड के लिए μ1 होगा, इस वाले के लिए μ2 हो जाएगा, okay. This is velocity profile, this is the velocity profile, okay. इसका स्लोप होगा du by dy, so μ1 into du by dy ये फर्स्ट फ्लूइड के लिए है, this is μ2 into du by dy for सेकंड फ्लूइड, okay. और इसको एब्सोल्यूट फॉर्म में आप लिखो, वेलोसिटी v हो जाएगा, इस वाले फ्लूइड का गैप कितना है, फर्स्ट वाले का h माइनस वाई, दूसरे वाले का गैप कितना है y, दूसरे वाले का गैप हो जाएगा y, ओके। सो तो हमारा v से v कैंसिल आउट, ठीक है। आप फिर इसको लिख सकते हो μ1 बाई h माइनस वाई इज इक्वल टू μ2 बाई वाई। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर से मल्टीप्लाई करो, इसको इधर से मल्टीप्लाई करो, यू कैन राइट नाउ μ1 y इज इक्वल टू μ2 h माइनस वाई, ओके। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, μ1 y इज इक्वल टू μ2 h माइनस μ2 y, ओके। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे, आप लिख सकते हो y वाले को एक साइड लेके आओ, h वाले को एक साइड लेके जाओ, सो μ1 प्लस μ2 इंटू वाई इज इक्वल टू μ2 y। अब आप इसमें y को लिख सकते हो जो भी रेस्ट टर्म है, y इज इक्वल टू μ2 h अपॉन μ1 प्लस μ2। सो दिस इज द पोजीशन, ओके, पोजीशन ऑफ द प्लेट व्हेन द शियर स्ट्रेस इज इक्वल, ओके। देखिए एग्जाम में आपको यही चीज़ क्या करेगा, अगर इसकी वैल्यू दे दिया, मान लेते हैं म्यू की वैल्यू दे दिया, h की वैल्यू दे दिया, तो आपको ऐसा डराइव करके पूरा ये फाइनल एक्सप्रेशन निकालना है, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, ओके। उसके बाद ये इसमें वैल्यूज को रख के आप पोजीशन को निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ डेरिवेशन टाइप का प्रॉब्लम, लेकिन आपको अगर वैल्यू देता है तो ये दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, आपको याद नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट नो द हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम and get this expression and put all the values and get the final answer, okay. So here the answer is y is equal to μ2 h by μ1 plus μ2. तो दिस इज द फर्स्ट केस। एक पहले केस में ये बोल रहा है कि दोनों इक्वल है, अगर मान लेते हैं कि दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि दोनों मिनिमम हो,
ओके तो मिनिमम में दोनों का एडिशन मिनिमम एक्चुअली, ठीक है, विल सी दैट। देखिए सेम सेम चीज़ उसमें ये चीज़ रिपीट हो रही है। मीन यहाँ पे देखिए, so, ये तो सेम सेम फिगर है। So this tau is equal to mu du by dy. We have already seen that. So upper plate tau 1 is this mu 1 v h minus y. अब हम लोग इससे पहले वाले में देख चुके हैं mu 2 sorry tau 2 is equal to mu 2 into v by y. Okay, so first we have to get total. So tau is equal to tau 1 plus tau 2. Okay, so put this value on this expression. So tau is equal to mu 1 v by h minus y plus mu 2 v by y. This is the our general expression. Okay, now for minimum they are asking, okay, for minimum shear stress. तो minimum के लिए क्या होगा, ये हमारा y वेरिएबल है, तो with respect to y डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो, you will get the answer. Okay, so we have to just differentiate this d tau by y dy is equal to 0. Okay, so differentiate this equation with respect to y. So d tau by dy is equal to minus mu 2 v by y square plus mu 1 v by y h minus y होल स्क्वायर। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे यू विल गेट दिस। अब इसको 0 पुट कर देना है हमको, पुट 0, okay, because for minimum d tau by dy is equal to 0, put 0 here, so you will get minus mu 2 y square plus mu 1 upon h minus y होल स्क्वायर is equal to 0. ओके इसको और सिंप्लीफाई करो आप, म्यू 2 बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू 1 बाई एच माइनस वाई होल स्क्वायर। अब ये देखिए मैथमेटिक्स है, ये मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अब आप इसको और सिंप्लीफाई करो, इसको और सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट रूट ऑफ म्यू बाई रूट ऑफ म्यू 2 बाई वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू 1 बाई एच माइनस वाई। अब इसको क्या करो, रूट वाले को एक साइड ले लो, बिना रूट वाले को एक साइड कर लो, सो यू कैन राइट एच माइनस वाई बाई वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू 1 बाई रूट ऑफ म्यू 2। ओके और फिर इसको और सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट एच बाई वाई माइनस 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू 1 बाई म्यू 2। अब 1 को इस साइड ले जाओ, राइट साइड ले जाओ, सो एच बाई वाई इज इक्वल टू 1 प्लस रूट ऑफ म्यू 1 बाई म्यू 2। अब इसको थोड़ा रेसिप्रोकल कर लो, सो एच बाई वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस म्यू 2 बाई म्यू 1 बाई म्यू 2। अब यहाँ से आप इसको y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल टू h upon 1 plus root of mu 1 by mu 2. So this is the expression, final expression when shear stress is minimum, and the previous one was when it was equal. Okay, so again like पहले वाले के जैसे अगर वैल्यू देता है तो आप पहले ऐसे सॉल्व करो, एक्सप्रेशन निकालो और उसके बाद वैल्यू को पुट करके फाइनल आंसर निकाल लो। ओके सो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप ये आ सकता है एग्जाम में। मान लेते हैं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में नहीं, बट मे बी यूनिवर्सिटीज़ में या फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पे मेंस आपको देना है, जैसे जो भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह होता है, या फिर अगर आप मैकेनिकल ऑप्शनल लेते हो तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। So this was actually very nice question. I really feel this question is very good question, very important question. So you please remember how to solve this kind of problems. Okay, we'll see some more problem. Okay, so question number 10. In the flow condition given in figure, determine the velocity at which central plate of area 5 meter square will move if a force of 150 Newton is applied to it. The viscosity of two oils are in the ratio of 1:3 and viscosity of top oil is 0.1 Newton second per meter square. Okay, they are asking what they are asking, determine the velocity. ठीक, velocity they are asking. So ये फिगर दिया हुआ है, ओके एक नैरो गैप है, इसके बीच में एक प्लेट है, इसमें 150 न्यूटन लग रहा है, ऊपर के साइड में 1:3 है। ओके इसमें देखिए रेशियो जो विस्कोसिटी का रेशियो 1:3 है, ऊपर वाले मान लेते 0.1 है, तो नीचे वाले में 0.3 हो जाएगा। गैप इसमें दिया हुआ है, दिस इज 0.5, दिस इज 0.5। सो दे आर आस्किंग व्हाट इज किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एरिया 5 मीटर स्क्वायर।
ओके। सो कुछ नहीं है, आप देखिए यहाँ पे जो शियर फोर्स, इसके वजह से जो शियर फोर्स आ रहा है और जो फ्लूइड में रहेगा वो दोनों बराबर होगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके। सो इस टाउ इज इक्वल टू, आई मीन ये फोर्स जो लग रहा है 150 न्यूटन। ओके। सो ना इधर मान लो F1 है, F2 है। सो शियर फोर्स क्या था हम लोग वहाँ पे देखे थे, इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस लेक्चर, सो टाउ इज इक्वल टू, सॉरी, F इज इक्वल टू म्यू AV बाई वाई। ओके। सो दिस F1 विल बी म्यू1 AV बाई H1 Y1। ठीक है। अब इसमें सारी वैल्यूज दी हुई हैं, V को, V इज अननोन, तो V को छोड़ के सारी वैल्यू रख दो। उसी तरीके से F2 इज इक्वल टू म्यू2 AV बाई Y2, इसमें भी V अननोन है, सारी वैल्यूज को रख दो V को छोड़ के। अब ये F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ठीक है। अब रखो इसमें 150 इज इक्वल टू 0.5 इंटू वी प्लस 0.3 इंटू वी, ये हो जाएगा इंटू 5/5 इंटू 10⁻³ अब यहाँ से आप देखो सिर्फ इस इक्वेशन में v इज अननोन, अब v के लिए सॉल्व कर लो, विल गेट v इज इक्वल टू 0.375 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको शियर फोर्स इक्वेट करना है, विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस मैंने एग्जाम्स में देखे हैं, तो या अभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, सो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर इट। एनीवे विल सी दैट। सो जो लोग भी इंजीनियरिंग वगैरह किए हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े होंगे, वो ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस किए होंगे। ओके, बट स्टिल इफ यू डोंट रिमेंबर, यू कैन रिमेंबर फ्रॉम हियर। Okay, a circular disc of diameter d is kept at a fixed height h above fixed surface by a layer of oil having viscosity mu. Determine the expression for torque on disc. Okay, कुछ नहीं, एक आपका एक डिस्क है, नीचे फ्लूइड उस पर ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ओके, तो पूछ रहा है कि टॉर्क कितना होगा, बस इतना ही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू देखोगे तो इट विल लुक लाइक अ डिस्क। ये मान लो एच है। ठीक है, मान लो इसका रेडियस डायमीटर डी है, तो रेडियस आर होगा, ये वाला रेडियस आर होगा, कैपिटल आर। ओके, तो आपको करना है, यू टेक स्मॉल एलिमेंट एट अ डिस्टेंस आर। ठीक है, आप एक डिस्टेंस आर पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लो, उस पर फोर्स निकालो, ठीक है। मान लो आर पे डी आर का एलिमेंट ले लो, उस पर फोर्स क्या होगा, और फिर उसको उस पर टॉर्क करो, और फिर 0 to r इंटीग्रेट कर दो, विल गेट द आंसर। ये इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, तो अब आप एलिमेंट लेते हो तो फोर्स, विल सी दैट। देखिए टॉर्क क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू रेडियस। ओके, सो ये हमारा फोर्स लगेगा उस पर डिस्क पे, और वेलोसिटी जो होती है आपको पता होगा, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, रेडियस आ रहा है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, अब देखिए फ्लूइड है नीचे, डिस्क के नीचे फ्लूइड है, तो ऑब्वियसली उसमें कौन सा फोर्स एक्ट होगा, शियर फोर्स एक्ट होगा। सो व्हाट वाज शियर फोर्स, वी हैव सीन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स, दैट इज टाउ इज इक्वल टू म्यू AV बाई वाई। ओके, सो अब इसको F को यहाँ पर रखो, इसमें रखो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, डी टाउ इज डी एफ। अब देखिए हम लोग पहले स्मॉल एलिमेंट, अब ये तो एब्सोल्यूट हो गया, फिर स्मॉल एलिमेंट की बात करेंगे, तो डी टाउ इज इक्वल टू डी एफ इंटू आर, क्योंकि पूरे के लिए हमें पहले इस स्मॉल एलिमेंट पे करना है, और देन वी हैव टू इंटीग्रेट। सो डी टी क्या होगा, म्यू इंटू डी ए वी बाई वाई इंटू आर। ठीक है, अब एरिया क्या है, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, उसको डिफ्रेंशिएट करो तो 2 पाई आर डी आर। ठीक है, और v क्या है, उस एलिमेंट पे वेलोसिटी क्या है, आर ओमेगा। अब ये सारी वैल्यू डी ए वी सब इसमें रख दो डी टाउ वाले में। अब डी टाउ वाले में रखोगे तो आपको ये पूरा मिलेगा, दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द डी टी। तो म्यू इंटू 2 पाई आर डी आर, आर ओमेगा इंटू आर। अब ये वाला भूलिएगा मत, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि वहाँ पे भी एक आर है। ठीक है, आप उसमें v को बस ऐसे रख के निकाल सकते हो, नहीं, आपको आर ओमेगा रखना है। ठीक है, सो म्यू इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू आर ओमेगा इंटू आर इंटू वाई। अब इसमें देखिए सिंप्लीफाई करो, सो 2 पाई आर म्यू ओमेगा आर क्यू बाई एच इंटू
डी आर, देखिए ये स्मॉल एच है, आप वाई को आप एच ले लोगे, ऑब्वियसली बात है, उसमें गैप एच दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें देखिए 2 पाई म्यू ओमेगा एच सब कांस्टेंट है, ओनली वेरिएबल इज आर, सो दिस वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू आर, ठीक है, 0 टू आर वी हैव टू इंटीग्रेट, जो मैंने शुरू में आपको बताया, ठीक है। आप इंटीग्रेट करो, यू विल गेट दिस 2 पाई म्यू ओमेगा बाई 4 एच, सो आर टू द पावर 4 बाई 4, इसको आप क्यूब को इंटीग्रेट करो, आर टू द पावर 4 बाई 4, अब इसमें लिमिट रख दो 0 टू आर, इफ यू सिंप्लीफाई विल गेट पाई आर ओमेगा आर टू द पावर 4 बाई 2 एच। बट हमारे क्वेश्चन में डी के टर्म में दिया, यू जस्ट रिप्लेस आर बाई डी बाई 2, सो यू कैन राइट लाइक पाई म्यू ओमेगा बाई 2h इंटू डी बाई 2 टू द पावर 4। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, पाई म्यू ओमेगा डी टू द पावर 4 32h, ओके। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। और फिर से देखिए यहाँ पे भी कई बार वो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे देंगे, वो ओमेगा की वैल्यू, डी की वैल्यू, एच की वैल्यू, तो आपको पहले इस तरीके से पूरा एक्सप्रेशन निकालना होगा। अब डायरेक्टली दिस इज नॉट अ फार्मूला, यू कैन नॉट यूज दिस एज अ फार्मूला, you have to get this expression by derivation and then you can put all the values here and get the final answer, okay। So I have already seen this question, I think जो बार्क का एग्जाम होता है उसमें मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है, तो बार्क का जो रिटर्न होता है वहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक। उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई थी, बट दिस सेम एक्सप्रेशन वी हैव टू यूज, ठीक है। तो एनीवे अगर आपका मेंस एग्जाम में आता है तो आपको पहले पूरा करके तब करना होगा। अब एमसीक्यू वाले में आपको फॉर्मूला अगर डायरेक्टली याद है तो यू कैन यूज इट, ओके। नाउ देखिए, अब अगला जो क्वेश्चन है ये क्या था, हमारा प्लेट था, डिस्क था। अभी क्या है कि कोन यूज कर रहा है, ठीक है, कोन में रोटेट हो रहा है ओमेगा से, फिर हमारा सेम चीज टॉर्क पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, सो दिस क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे देखिए, पढ़ लेते हैं फिर समझाता हूँ मैं। सॉलिड कोन ऑफ रेडियस आर एंड वर्टेक्स एंगल 2 थीटा is made to rotate at an angular velocity omega in a conical cavity containing oil with a viscosity mu. If h is the gap between the cone and the cavity, then find the torque required to rotate the cone. Okay, तो ये देखिए, ये हमारा कोन है, इसके बीच में फ्लूइड है, ये गैप h है, ये इसका रेडियस r है, अब ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि टॉर्क कितना होगा। ये पूरा जो एंगल 2 थीटा है, पूरा 2 थीटा है, हाफ हमारा थीटा, ये हमारा हाफ थीटा हो जाएगा, ओके। तो अब इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, वो ट्रिक आपको पता होना चाहिए। इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा सरफेस फ्लूइड से टच है, वो वाली एरिया हमें चाहिए, ठीक है। इससे पहले वाले में वो पूरा प्लेन था, तो उसके अकॉर्डिंग आराम से डी इज इक्वल टू एरिया पाई आर स्क्वायर मान लिए थे। बट यहाँ पे भी वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो कोन वाला पार्ट है दैट इज टचिंग विद द फ्लूइड, सो हमें एक्चुअली में वो वाला एरिया चाहिए, वो वाला एरिया मिलेगा। उसके बाद जो इंटायर इसका सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा डिस्क वाला जो प्रॉब्लम है एकदम वैसे ही है, ओके। तो इसमें ट्रिक वही है, वो एरिया निकालना, उसके बाद कुछ भी नहीं है। विल सी द, देखिए अब क्या करो, अब एक ऐसा एलिमेंट ले लो उसमें, ठीक है, मान लो ये पूरा है, अब इसमें एक छोटा एलिमेंट ले लो, छोटा एलिमेंट लो, अब इसको आप इनलार्ज करके देखो, ये छोटे वाले को इनलार्ज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे पूरे आर में डी आर एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस पूरे आर में डी आर एलिमेंट ले रहे हैं। अब इसमें देखिए, ये वाला एंगल कितना थीटा, पूरा 2 थीटा है, तो ये थीटा, इज थीटा, अब देखिए ये थीटा, तो ये भी हमारा थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा सरफेस से टच हो रहा है लिक्विड से, तो हमें एरिया के लिए ये वाला चाहिए जो कि ds है, ठीक है। तो आप ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये दिस ट्रायंगल्स आप लिख सकते हो sin थीटा इज इक्वल टू, सॉरी मान लेते हैं कि ये r है, ठीक है, तो ये dr हो जाएगा, ओके। सो ds sin थीटा इज क्या होगा, dr बाई ds, ओके।
फिर हम लोग ds क्या लिख सकते हैं, ds इज dr बाई साइन थीटा। ओके, ये ही बस ट्रिक है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं। जो ये हमारा पार्ट होगा ये ds इज नथिंग बट dr बाई साइन थीटा। अब एरिया क्या होगा हमारा, एरिया इज 2 पाई आर, और ये ds एक्चुअली इज नॉट dr, क्योंकि हमारा ये वाला पार्ट टचिंग है ना कि ये वाला पार्ट टचिंग है, ds इज टचिंग विद द फ्लूइड, सो dA इज इक्वल टू 2 पाई आर dr। अब इसमें आप रख दो इस ds की वैल्यू, ds की वैल्यू क्या, 2 पाई आर dr बाई साइन थीटा। ओके, दिस इज नथिंग बट द एरिया। अब इंटायर प्रॉब्लम जो हमारा क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे ही है, बस आपको उसमें रखना है, इंटीग्रेट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, जैसे मैंने बोला कि एकदम पूरा प्रॉब्लम वैसे ही है। सो हमारा डी टी इज डी एफ इंटू आर। ओके, सो डी एफ इज म्यू डी ए, ये डी ए होगा, डी ए वी बाई वाई इंटू आर, और डी ए इज 2 पाई आर डी आर। ओके, 2 पाई आर मतलब क्या, वो साइन थीटा है हमारा। सो डी एस एक्चुअली 2 पाई आर डी एस, सो डी एस इज वॉट, डी आर बाई साइन थीटा। सो वी हैव टू राइट 2 पाई आर डी आर, आर ओमेगा एच साइन थीटा आर। तो अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा टर्म क्या रहा है, साइन थीटा। जैसे जो पिछला वाला था हमारा उसमें साइन थीटा नहीं था, इसमें कोन वाले में, डिस्क वाले में हमें अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो कोन वाले में साइन थीटा आ जाएगा। ओके, दिस इज द ओनली टर्म, एक्स्ट्रा टर्म will come, but the rest thing is absolutely same. Okay, so now integrate from 0 to t dt. So 2 pi mu omega by h sin theta 0 to r r q dr। ठीक है, आप इसको सिंपल इंटीग्रेट कर लो। So you'll get t is equal to 2 pi mu omega by h into sin theta, so r to the power 4 by 4 0 to r। Okay, इसको फिर से और सिंप्लीफाई कर लो, you'll get this। ठीक है, तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा t इज इक्वल टू पाई ओमेगा म्यू आर टू द पावर 4 बाई 2 साइन थीटा। ओके, अगर आप मान लो आपको d के टर्म में लिखना है तो आई थिंक यहाँ पे 32 हो जाएगा। ओके, नीचे पाई ओमेगा म्यू टू द पावर 4 बाई 32 h साइन थीटा। ओके, सो दिस इज द आंसर। आई थिंक उसमें रेडियस का टर्म में दिया है तो आप रेडियस का टर्म में रखो, डिस्क में डायमीटर के टर्म में दिया था तो डायमीटर के टर्म में रखे थे। ठीक है, यहाँ पे हमें रेडियस के टर्म में रखना होगा। सो दोनों क्वेश्चन में बस इतना डिफरेंस है, साइन थीटा का डिफरेंस है, प्रोसीजर इज एब्सोल्युटली सेम। और आप देख सकते हैं कि कौन वाले में कौन सा पार्ट हमें कैसे निकालना है। ओके, तो वो आप बस निकाल लो, और डी टी इज इक्वल टू डी एफ इंटू डी आर वाले में रख दो, इंटीग्रेट करो 0 to r, विल गेट द आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन है, सॉरी मुझे लगा खत्म होने वाला। सो I think this is the last question of this chapter number 1। Okay, तो यहीं पे हमारे chapter number 1 complete भी हो जाएगा। We'll see the next chapter and next topic from the next class। Okay, so we'll see the last question। The capillarity rise at 20 degrees centigrade in glass tube of 1 mm diameter containing water is approximately। Okay, कुछ नहीं है, कैपिलरिटी में हम लोगों ने देखा था। सो कैपिलरिटी राइज एंड डिप्रेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू देखिए इस क्वेश्चन में सिग्मा की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो वो हमको पता है दैट इज सरफेस टेंशन, दैट इज 0.073, थीटा 0 हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज 1, सो 4 इंटू 0.073, रो की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू 9.8, और डी की वैल्यू दी हुई 0.1 mm। अब इसमें रख दो 0.001 मीटर, ये मीटर में सब रखना। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे विल गेट 30 mm। ओके, सो दिस इज द नथिंग बट कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला है। और क्वेश्चन है, सॉरी फॉर दैट। ओके, if the surface tension of water air interface of 0.073 Newton per meter, the gauge pressure inside a raindrop of 1 mm diameter will be। देखिए इसमें रेन ड्रॉप की बात कर रहा है। ओके, तो अब आपको पता होगा रेन ड्रॉप का एक्सप्रेशन क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट। याद करिए, मैंने उसमें डिराइव किया, पिछले लेक्चर्स में मैंने डिराइव कराया हुआ है
फॉर वाटर ड्रॉपलेट, वाटर जेट एंड सोप बबल, तीन चीज़ के लिए मैंने ड्राइव किया एक्सप्रेशन excess pressure intensity. Okay, so here is nothing but for water droplet it is 4 sigma by d. So sigma की value 0.03, d की value 0.1 mm. Okay, you just put here, if you simplify you'll get 292 Newton per meter square. Okay, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है. सो बबल के लिए पूछता है तो 8 सिग्मा बाई डी हो जाएगा, और अगर वाटर जेट के लिए पूछता है तो 2 सिग्मा बाई डी हो जाएगा. ओके, सो वो तीनों फार्मूला भी याद रखिए. या सो दिस वाज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स. सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट और यू कैन मेल मी. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट. ओके, next chapter will be pressure and measurement. We'll start with the pressure and measurement. Okay, so I hope you like that. Keep watching. Thank you for watching. Bye bye.